What are ethics? Ethics are standards of human conduct that society adopts for itself. Standards of human conduct that society adopts for itself. Ethics are a set of do's and don'ts that govern human conduct in a social setting. Ethics are a set of do's and don'ts, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सोशल एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन बीइंग को. So ethics are a set of do's and don'ts that govern human conduct in a social setting. For instance, women are expected to behave differently in different societies. For example, not wearing a wheel is not considered unethical in metro cities, but it is considered unethical in some villages. मतलब ये दुपट्टा पहनना मेट्रो सिटीज़ में अनएथिकल नहीं माना जाता है, पर स्मॉल विलेजेस में अनएथिकल माना जाता है. So ethics are standards of human behavior that society adopts for itself. Ethics are a set of do's and don'ts that govern human conduct in a social setting. Concepts related to ethics. End in itself. मतलब ethics अपने आप में एक end है. वो कोई ऐसा means नहीं है कि इससे कुछ और पाया जा सके. Being ethical is not a means to something, but it itself is a source of happiness and satisfaction in life. For example, donating blood, charity, etc. gives a good feeling to people. Consequences. Adherence to ethics have positive consequences for an individual, society, and the world at large. मतलब एथिक्स को फॉलो करेंगे उसके हमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, सोसाइटी को और पूरे वर्ल्ड को ही एट लार्ज. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन इज एथिकल, he she receives praise and recognition from society. When countries are cooperative towards each other, peace and progress follows. So consequence of ethics is positive only, no negative consequence of being ethical. Determinants. There are various factors that combine to determine ethical standards in a society. There are various factors that combine. बहुत सारे factors हैं जो combine करते हैं to determine ethical standards एक society के. Like individual conscience, हमारी अंतरात्मा, family, education, politics, economy, performance pressure, all have a bearing on the ethical standards of people, on whether people behave. ये सारे factors determine करते हैं कि एक बंदा ethical behave करता है या नहीं. Not morals or religion. Ethics is different from morals as it is contextual, whereas morals are an individual principle. हाँ, मॉरल्स एक हर आदमी के अलग अलग होते हैं. वो किसी के रिलीजन में कुछ मॉरल टीच किए जाते हैं तो हर इंडिविजुअल के लिए अलग होते हैं, पर एथिक्स पूरा सोसाइटी के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ सोसाइटी इट माइट नॉट बी एथिकल टू बी होमोसेक्सुअल, but in an individual might find it morally right to be homosexual. Absolutism and relativism. Ethics are standards of human conduct, and there are two schools of thought on how these standards develop. There are two schools of thought on how these standards of ethical standards develop. Absolutism or relativism. Absolutism claims that ethical standards are largely universal and the same rule should apply to everyone everywhere. जो एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं वो क्लेम करते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सल होते हैं एंड हर किसी को वो सेम रूल अप्लाई करते हैं हर जगह पे. Largely universal. Absolutists claim that ethical standards are largely universal and the same rules should apply to everyone everywhere. For example, violence or lying is unethical everywhere. कहीं पे भी हो, जहाँ कहीं पे भी हो, absolutists claim करते हैं वो largely universal हैं ये ethical principles. और रिलेटिविस्ट क्लेम दैट एथिक्स आर लार्जली रिलेटिव एंड ओनली बेसिक स्टैंडर्ड्स. हाँ, रिलेटिविस्ट जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कि खाली कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ेंगे. बाकी बाकी जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं एथिक्स के वो सब रिलेटिव होते हैं, डिपेंड ऑन द प्लेस, टाइम, बिहेवियर, सिचुएशन. फॉर इंस्टेंस, डिफरेंट कंट्रीज ऑफर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्रीडम to their people. Restricting free speech is seen as unethical in USA, whereas it is readily acceptable in China in larger national interest. जो फ्री स्पीच होती है, रिस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच, यूएसए में अगर उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्री स्पीच को तो वो अनएथिकल है, पर चाइना में इसको अनएथिकल नहीं माना जाता. इट इज़ सीन एज अ लार्जर इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट.
व्हाट आर मॉरल्स, जैसे ये इसमें एग्जांपल दे सकते हैं वो जैक मा वाला, कि वो बहुत बड़ा आदमी था चाइना का पर तब भी गायब हो गया था। व्हाट आर मॉरल्स, मॉरल्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। मॉरल्स एक पर्टिकुलर इंसान के होते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो डेवलप करता है बाय द टाइम ही ग्रोज, फ्रॉम द वैल्यूज ही इनकलकेट फ्रॉम हिज फैमिलीज, institution, school, etc. Morals are principles of right and wrong held by an individual. Unlike ethics, morals are standards of behavior pertaining to an individual and not social conduct. Unlike ethics मतलब ethics की तरह ethics में ऐसा नहीं होता कि morals are standards of behavior pertaining to individual, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं और बाहर के लिए नहीं होते, बाहरी लोगों के लिए मतलब कि एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर के लिए नहीं होते हैं। Unlike ethics, morals are standards of behavior pertaining to an individual and not social conduct. Morals arise from personal experience, character, conscience, and so on. Morals arise from personal experience, character, conscience, and so on. For example, homosexuality might be unethical in a society, but it might be seen as a moral by an individual. Concepts related to morals, individualistic, ये तो हो ही चुका है कि morals are an individual concept and products of each individual's conscience, upbringing, psyche, etc. ये इंडिविजुअल कंसेप्ट होता है और डिपेंड करता है पर्सन की कंसाइंस अपब्रिंगिंग पे। मॉरल एटीट्यूड, एन इंडिविजुअल्स मॉरल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉरल एटीट्यूड, these are attitude towards moral issues. People develop a tendency to see an issue favorably or unfavorably in moral terms. For instance, a person who has right wing morality tends to see all right wing policies in positive terms. जो ये मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जो पर्सन के मॉरल्स होते हैं, उससे हम लोग का मॉरल एटीट्यूड भी फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा वो सोचता है आदमी, मॉरल वैल्यूज़ जैसी उसके वैल्यूज़ इनकलकेट हो जाती हैं, वैसा ही उसका एटीट्यूड भी फॉर्म हो जाता है। वो हर चीज़ को उसी हिसाब से देखने लगता है। तो ये लिखा है, इंडिविजुअल्स मॉरल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉरल एटीट्यूड, दीज आर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मॉरल इशूज़। पीपल डेवलप अ टेंडेंसी टू सी एन इशू फेवरेबली और अनफेवरेबली इन मॉरल टर्म्स। जब भी कोई इशू पैदा होता है तो वो जो पीपल होते हैं, जो भी आदमी जिसका मॉरल एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है, वो उसी के फेवर में देखता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि कोई राइट विंग का आदमी है, वो चाहे कोई भी पॉलिसी हो, उसको राइट विंग के पॉजिटिव टर्म्स में ही देखेगा। फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन हु हैज़ राइट विंग मोरालिटी टेंड्स टू सी ऑल राइट विंग पॉलिसीज इन पॉजिटिव टर्म्स। हाँ, तो जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई पर्सन है जिसकी राइट विंग मोरालिटी है, उसके अंदर फीड की कर दी गई है वैल्यूज़, राइट विंग सही है, उसका एटीट्यूड भी वैसा ही डेवलप हो गया है, तो वो जो भी राइट विंग की पॉलिसीज़ होंगी उनको पॉजिटिव टर्म्स में देखेगा, चाहे वो थोड़ा सा भी हैम्पर कर रही हों, थोड़ी सी भी नेगेटिव रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस हो उनका, लेकिन वो हमेशा राइट विंग पॉलिसीज़ को पॉजिटिव टर्म्स में देखेगा। डाइवर्सिटी, मोरालिटी शोज हाई वेरिएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। हाँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव मोरालिटी, डाइवर्सिटी मतलब कि क्योंकि ये हर पर्सन पे डिपेंड करता है, तो बहुत तरीके तरीके के पर्सन है पूरी सोसाइटी में होते हैं, तो ये हाई वेरिएशन शो करता है। मॉरलिटी शोज हाई वेरिएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, व्यूज ऑन कैपिटल पनिशमेंट वेरी ह्यूजली फ्रॉम अबॉलिशन टू फेज्ड अबॉलिशन टू रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन टू एक्टिव रिटेंशन। जैसे कैपिटल पनिशमेंट पे व्यूज़ हर इंसान के वेरी करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि तुरंत हैंग कर दिया जाए पर्सन, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, खाली पनिशमेंट देनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। तो बहुत डिफ़र करते हैं ड्यू टू डिफरेंट पर्सन टू पर्सन इन सोसाइटी। Dynamism, although stable, moral standards can change as people are exposed to new information, lifestyle, culture। हाँ, ये बहुत डायनामिक होते हैं मॉरल वैल्यूज़, क्योंकि मॉरल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जब भी कोई पर्सन नई कहीं जाता है, नया इन्फॉर्मेशन इनकलकेट करता है, न्यू लाइफस्टाइल या कल्चर में जाता है, नॉर्थ का पर्सन साउथ इंडिया में जाता है, तो वो देखता है तो कुछ नया मॉरल इनकलकेट करता है, तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग अब्यूज कैन बी सीन एज अ क्राइम, बट आफ्टर सर्टेन अवेयरनेस इनसाइड पीपल हैव बिगन टू सी इट एज अ सिकनेस। हाँ, जैसे ड्रग अब्यूज़, पहले ड्रग जो लोग लेते थे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते थे, उसको एक क्राइम देखा जाता था
के तौर पे देखा जाता था, बट ऐसे जैसे पीपल अवेयर हुए इस चीज़ के बारे में, उसको एक सिकनेस का नाम दे दिया गया, which needs help and cure. Essence of ethics. What is meant by essence? Essence is the intrinsic quality of something that determines its character. Essence of ethics stands for its features, significance, benefits, and so on. Essence is the intrinsic quality of something that determines its character. Essence of ethics stands for its features, significance, benefits, and so on.